ایک غلام صحابی جس کا مالک اس پر سخت ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس سخت ظلم میں بھی وہ صحابی صرف ایک ہی بات کیا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بچپن سے مکہ کے ایک آدمی کے غلام تھے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت بلال کے خاندان کا افریقہ پر راج تھا، جہاں حضرت بلال کے خاندان کی حکومت ایتھیوپیا سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت بلال کی ماں اس ایمپائر کی ایک پرنسس تھی۔ Bilal radiallahu ta'ala anhu's mother was an Abyssinian princess. لیکن اچانک ایک دن اسی خاندان کے ایک آدمی نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور یمن کو حبشہ سے توڑ دیا، اور اس آدمی کا نام تھا ابرہہ۔ جیسے ہی ابرہہ عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا، اس نے دیکھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اور اسی حج کی وجہ سے مکہ عرب کا ایک بہت ہی رچ اور امیر علاقہ بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے ذہن میں ایک بہت ہی سٹوپڈ آئیڈیا آیا، اور اس نے اپنے کیپٹل یمن میں بھی ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر ابرہہ کے چرچ کی طرف آئے۔ لیکن آف کورس عرب میں کوئی بھی ابرہہ کے اس چرچ کی طرف نہیں آیا، اور سب دوبارہ اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کو غصہ آیا، اور اس نے 60,000 کی فوج جمع کر کے کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اب ابرہہ کی اسی فوج میں بلال رضی اللہ عنہ کی ماں پرنسس حمامہ بھی تھی۔ ابرہہ نے اپنی پوری طاقت سے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، لیکن we all know وہ یہ جنگ ایک میریکل سے ہار گئے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب ابرہہ تو اس جنگ میں مر گیا، لیکن مکہ کے لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ماں کو اپنا قیدی بنا لیا، اور مکہ کے بازار میں حبشہ کی شہزادی کو ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا، اور انہیں خریدنے والا مکہ کا سب سے ظالم آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اسی سال جس سال ابرہہ مارا گیا اور حضرت بلال کی ماں غلام بنی، مکہ میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ امیہ بن خلف نے اپنی غلام حمامہ کی شادی مکہ کے ایک اور غلام سے کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد مکہ میں بلال رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اب مکہ کا قانون یہ تھا کہ غلام تو غلام ہو گئی، لیکن غلاموں کے بچے بھی آٹومیٹکلی اپنے ماسٹرز کے ہمیشہ غلام رہیں گے، بلکہ یہ قانون آج سے 100 سال پہلے تک امریکہ کے وائٹ لوگوں نے اپنے بلیک غلاموں کے لیے بھی بنایا تھا۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بالکل ایک عام غلام کی طرح مکہ میں بڑے ہوئے، لیکن حضرت بلال اور باقی سارے غلاموں میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ باقی سارے غلاموں کے ماں باپ بھی غلام تھے، لیکن حضرت بلال کی ماں کسی زمانے میں ایک پرنسس رہ چکی تھی، اسی لیے حضرت بلال کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت ایک غلام کی طرح نہیں بلکہ ایک شہزادے کی طرح کی تھی۔ جب حضرت بلال کی عمر 30 سال ہوئی، انہی کے شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ دیکھ کر مکہ کے سارے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مکہ کے سردار ان پر جھوٹے الزام لگانے لگے۔ حضرت بلال کا ماسٹر امیہ بھی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا رہتا تھا، لیکن جب بھی وہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتا تھا، وہ سب کچھ حضرت بلال چھپ کر سن لیتے تھے، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ تو جو بھی محمد کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر آخر کیوں مکہ کے سردار ان سے نفرت کر رہے ہیں؟ یہاں سے آہستہ آہستہ حضرت بلال کے دل میں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मक्का में मुसलमान बढ़ने लगे और आखिर इतने बढ़ गए कि अब मक्का के सरदार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इस्लाम को और फैलने से रोकने के लिए नए मुसलमानों पर जुल्म करने लगे, स्पेशली कमजोर मुसलमानों पर। एक दिन हजरत बिलाल का मास्टर उमैया बिन खल्फ मक्का में किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहस कर रहा था। اسمعك جيدا तो अचानक सामने से उस सरदार ने उमैया से कहा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन खुद तुम्हारा फेवरेट गुलाम बिलाल मोहम्मद के साथ मिल चुका है। أتجرئ على سؤالي जिस पर मक्का के सारे सरदार उमैया पर हंसने लगे। ये सुनकर उमैया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बिलाल उसका सबसे बेस्ट गुलाम था और वो बिलाल पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसने बिलाल को उस कमरे की चाबी भी दी थी जिसमें उसने अपने खुदाओं के बुत रखे हुए थे। और अब उसी बिलाल ने उमैया का सारा ट्रस्ट तोड़ दिया था। तो जब मक्का के बीच में सारे सरदार उमैया पर हंस रहे थे, ये देखकर उमैया गुस्से से पागल हो गया। بلال अगले ही दिन उसने बिलाल को पकड़कर उसे टॉर्चर करना शुरू किया। उसने हजरत बिलाल को कोड़े मारे और जब कोड़ों से उसका दिल नहीं भरा, उसने हजरत बिलाल को स्टील का आर्मर पहनाकर उन्हें सारा दिन धूप में फेंक दिया। मतलब सऊदी के डेजर्ट की सख्त धूप, जहां आज भी 50 डिग्री से ज्यादा गर्मी होती है। ये स्टील का आर्मर इस सख्त धूप से गर्म होकर हजरत बिलाल के स्किन को जला देता था। और जब इन सजाओं से उमैया बोर हो जाता था तो वो हजरत बिलाल को मक्का के आवारा लड़कों के हवाले कर देता था और वो लड़के हजरत बिलाल के हाथ और पैर बांधकर मक्का के गलियों में घसीटते थे। लेकिन उमैया का दिल इस सब से भी नहीं भरा। उसने हजरत बिलाल को सख्त धूप में रेत पर लेटाया और उनके सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा और हजरत बिलाल से कहा, कहो कि मेरा खुदा लात और ओजा है। लेकिन हजरत बिलाल फिर भी सिर्फ एक ही बात कहते जा रहे थे, अहद। जिससे उमैया को और भी गुस्सा आया और उसने हजरत बिलाल के ऊपर एक दूसरा बड़ा पत्थर रखा और बिलाल से फिर कहा, कहो कि मेरा खुदा लात और ओजा है। लेकिन हजरत बिलाल ने नहीं कहा और उमैया ने उन पर तीसरा बड़ा पत्थर भी रखा और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश हो गए। अब जब हजरत बिलाल पर ये सब जुल्म हो रहा था, एक दिन अचानक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत बिलाल के मास्टर उमैया के पास गए और उससे कहा कि बिलाल पर थोड़ा तो रहम करो, कब तक उस पर इसी तरह जुल्म करते रहोगे। तो उमैया ने गुस्से से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि अगर तुम्हें इतना ही इस बिलाल पर रहम आ रहा है तो फिर तुम इसे मुझसे खरीद क्यों नहीं लेते। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया को देखा और कहा, बोलो क्या कीमत चाहिए तुम्हें बिलाल की। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मक्का में बहुत बड़ा बिजनेस था और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि ये उमैया जो भी कीमत बोले मैं उसे अदा करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर उमैया ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। उमैया ने जानबूझकर बिलाल की कीमत बाकी गुलामों से बहुत ऊपर लगाई ताकि ये कीमत सुनकर अबू बकर पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिलाल को उमैया की मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। जैसे ही हजरत अबू बकर ने उमैया को सारे पैसे दे दिए, उमैया ने हंसकर उनसे कहा कि इस बिलाल के लिए अगर तुम मुझे बहुत कम पैसे भी दे देते तो मैं इसे बेच देता। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि अगर बिलाल के लिए तुम मुझसे 100 दिनार भी मांगते तो मैं बगैर सोचे तुम्हें दे देता। और हजरत बिलाल को खरीदते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें आजाद कर दिया। हजरत बिलाल पैदा होने से अब तक मक्का में एक गुलाम थे, लेकिन अब आजाद होने के बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार एक आजाद इंसान की तरह मुसलमानों की मीटिंग्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने लगे। हजरत बिलाल और बाकी गुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बिल्कुल आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता था और इन गुलामों को इतनी इज्जत मिलते देखकर मक्का के सरदार अंदर से जल रहे थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब हम आपसे तभी मिलेंगे जब आप इन काले और कमतर गुलामों को
अपने आप से दूर रखेंगे। लेकिन मक्का वालों की इसी रेसिज्म और गुरूर को तोड़ने के लिए कुरान की सूरह कहफ की आयत नाजिल हुई। ए मोहम्मद, अपने आप को इन्हीं लोगों के साथ रखना जो हर वक्त सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। खबरदार, तेरी निगाहें इनसे ना हटने पाए, और देख उसका कहना ना मानना जिसका दिल हमने अपनी याद से रोक दिया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का के सरदारों से ज्यादा इन कमजोर मुसलमानों को इज्जत दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों का जुल्म और भी बढ़ता गया, और अब वो सिर्फ कमजोर मुसलमानों पर नहीं बल्कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारने की प्लानिंग करने लगे। तो अब मक्का में रहना और इम्पॉसिबल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे, और हजरत बिलाल भी मक्का को छोड़कर मदीना पहुंचे। जैसे ही मुसलमान मदीना पहुंचे, मुसलमानों ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मदीना में मस्जिद नबवी बनाई। जैसे ही मस्जिद कंप्लीट हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था कि अब मदीना के इन नए मुसलमानों को हर दिन 5 वक्त की नमाज के लिए कैसे बुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों ने कहा हम यहाँ एक आग जलाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम क्रिश्चियंस की तरह बेल बजाकर लोगों को बुलाते हैं। और जब मुसलमान इन्हीं डिस्कशंस में थे, अचानक उनके पास एक सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब बताया कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा जिसमें एक शख्स घंटी बजाकर लोगों को बुला रहा था। मैं ख्वाब में इस शख्स के पास गया और मैंने उसे कहा ये घंटी मुझे बेच दो। उसने मुझसे पूछा तुम इस घंटी का क्या करोगे? तो मैंने उस आदमी से कहा कि मैं ये घंटी बजाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने मुझे कहा नहीं, क्या मैं तुम्हें इससे भी अच्छा तरीका ना बताऊं? और फिर उस आदमी ने मुझे ये वर्ड सिखाए। इस आदमी का ख्वाब सुनकर साथ बैठे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा कि मैंने भी सेम ख्वाब देखा है। अब ये तो जाहिर था कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अब क्वेश्चन ये था इन सारे सहाबा में कौन इस्लाम की पहली अजान देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ और बिलाल को अपने ख्वाब के अल्फाज सिखाओ, क्योंकि बिलाल की आवाज बहुत ऊंची और खूबसूरत भी है। जिसके बाद हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में खड़े हुए और इस्लाम की पहली अजान दी। आज पूरी दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि जब कहीं ना कहीं अजान दी जा रही हो। मदीना हिजरत करने के बाद मक्का से आने वाले सहाबा